Hello everyone, welcome back to a YouTube channel Simple Concepts. This video is about economic and financial affairs and also will be talking about some general awareness topics which will be helpful for your UPSC RBI Grade B, SEBI Grade A examination. So we'll be continuing with the articles of November month, but before that I would like to tell you that Ruhi ma'am is one of the educators on Unacademy. There she handles all the comprehensive courses for SEBI Grade A and RBI Grade B examination. So she takes all the kinds of these courses like RBI Grade B Phase 2, our SEBI Grade A Phase Paper 2, Banking Financial Economic Awareness, Current Affairs for all bank exams, Insurance Awareness for all other insurance exams. So you can join her courses by using the code SC10. First of all, you need to get the subscription on Unacademy. While getting the subscription, if you use the code SC10, you can get a discount of 10%. So you can go and enroll for it. This is the code that you have to use to access the free content which is available over there, like the videos, the study materials of the courses that you are doing, and also the PDFs would be available, the mock test links would be provided there, the other the courses which are upcoming, they would also be notified over there. So this is the Telegram channel of Ruhi ma'am. You can join this channel, Simple Concepts by Ruhi ma'am. There you can get each and every information related to your course and what are the upcoming courses. So now let's get started with our articles. So the very first article that we are studying here is about Indian Railways. It is been in the news that Indian Railways maintains high momentum in earnings and freight loading in October 2020. So first of all, to understand this headline, we need to know that what is freight loading. Okay, उसने बोला है कि earnings बढ़े हुए हैं and also there is increment in freight loading. So the point here is that freight loading is something that we transport from one place to another, be it the vegetable, fruits or any kind of goods. Okay, so that is called freight loading. तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है that Indian Railways have earned, the railways have earned this from freight loading. So according to Indian Railways, the freight loading for the month of October 2020 crossed last year's loading and earnings for the same period. Okay, so these are some of the facts, like it has earned rupees 10,405.12 crores from freight loading itself. ओके, सो फ्राइट लोडिंग, आई होप आपको जो मालगाड़ियों में सामान इधर से उधर भेजा जाता है उसी को ये फ्राइट लोडिंग यहाँ पे टर्म यूज़ किया गया है, विच इज़ ऑल्सो रुपीज़ 868.90 crores, दैट इज़ 9% हायर कंपेयर टू द लास्ट ईयर्स अर्निंग फॉर द सेम पीरियड. ओके, सो इंडियन रेलवेज जो है उसने कोविड के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा जो अर्निंग की है वो फ्राइट लोडिंग के थ्रू ही की है, बिकॉज देयर वर नो पैसेंजर ट्रेन्स. Okay, so here that is the point. So it has now increased up to 9% from the last year's earning. So why do you think कि ये earning जो है वो बढ़ गई होंगी? क्योंकि the point here is that पहले जो personalized vehicles होते थे, ओके, जो पर्सनल व्हीकल्स के थ्रू कुछ लोग अपना सामान ट्रांसफ़र करते थे, तो वो अभी बंद थे बिकॉज ऑफ कोरोना. तो द ओनली वे वॉज दिस रेलवेज और दिस एयर ट्रैवल. तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो एयर ट्रैवल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट इंडियन रेलवेज, they were using these railways. Okay, so that's why the freight loading was more, and because of that the Indian Railways was able to earn more and more. And also the point here is that कि यहाँ पे हम अगर कोविड की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द कोविड दिस पेंडेमिक एरा, तो उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है सामान का इधर से उधर, बिकॉज देयर वर ऑल्सो गुड्स विच वर रिलेटेड टू द दिस हेल्थ इक्विपमेंट्स जो हैं आपके, वो इधर से उधर बहुत सारे सिटीज़ में पहुंचाए गए हैं, रिमोट एरियाज़ में पहुंचाए गए हैं. एंड ऑल्सो द मेन थिंग इज़ दैट एयर ट्रैवल कुड नॉट बी यूज्ड फॉर द रिमोट एरियाज़ जहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है एयरपोर्ट्स एंड ऑल की. ओके, सो दैट इज़ द पॉइंट हियर. So loading was 108.16 million tons, which is 15% higher compared to last year's loading, and includes 46.97 million tons of coal, followed by iron ore 14.68 million tons, etc.
तो आपका जो कोल है, जो आयरन और है, उसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ है एंड दैट इज़ 15% हायर कंपेयर टू लास्ट ईयर। रिसेंटली लॉन्च फ्राइट बिजनेस डेवलपमेंट, जिसको हम FBD बोलते हैं, जो आपके लोडिंग अनलोडिंग का ध्यान रखेंगे, दैट इज़ वाया इंडियन रेलवेज पोर्टल बाय इंडियन रेलवेज विल रेंडर अ वन स्टॉप solution for freight parcel customers. Okay, so here is the point that FBD has been it has been launched. It is Freight Business Development. It has been launched by IR and it will render a one stop solution for the unloading and loading of freight and parcels. Now we are talking about National Jal Jeevan Mission organizes virtual conference for rural water supply. तो हमने जो हमने नेशनल जल जीवन, ठीक है, जिसको हम JJM बोलते हैं, इसकी बात हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं अच्छे से। मैंने आपको बताया दैट व्हाट इज़ जल जीवन मिशन एंड मैं आपको भी ब्रीफली बता देती हूँ दैट JJM इज़ बेसिकली दिस इज़ द प्रोग्राम दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द जल शक्ति मिशन। ओके, इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय जल शक्ति मिनिस्ट्री, जिसमें कि क्या किया गया है दैट the rural households, they will be getting the portable and the safe drinking water through this tap. Okay, household taps, they will be getting this water portable and safe for drinking through the household taps in each and every house, okay, of rural areas. Okay, this scheme is for rural areas. You have to remember that what is JJM. Okay, because if you want to understand it, what are the progresses in JJM mission, then you should know that what is JJM at the first place. Okay, so I told you that what is JJM. अब उससे related news ये आई है that it has organized virtual conference of State Minister for Rural Water Supply. Okay, तो यहाँ पे point तो ये है, see, in the exam it's not going to be asked that which conference was organized or how many ministers were there. It is not going to ask that. In fact, it would ask that what is JJM. Okay, is it for rural households? Okay, is it for urban households? Okay, which ministry has launched this? तो ये सारे जो questions है वो ही पूछे जाएंगे. So special emphasis of कॉन्फ्रेंस वॉज 100-day कैंपेन. हाँ, अब इस कैंपेन में जो चीज़ें लॉन्च हुई हैं वो हमें पढ़नी चाहिए एंड ऑल्सो इट वॉज अ 100-day कैंपेन. ठीक है, 100-day कैंपेन के बारे में हम बात करते हैं. सो व्हाट आर द की हाईलाइट्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस. एज आई टोल्ड यू दैट इन दिस वील बी स्टडिंग दैट जो आपकी कॉन्फ्रेंस में बातें हुई हैं वो क्या क्या थी. सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट हियर इज दैट द मिशन गिव्स हाईएस्ट प्रायोरिटी टू वाटर क्वालिटी. ओके, एज आई टोल्ड यू कि इसमें जो पोर्टेबल और सेफ ड्रिंकिंग वाटर है उसके ऊपर फोकस किया गया है. सो हियर द मिशन इट सेल्फ गिव्स द हाइएस्ट प्रायोरिटी टू द वाटर क्वालिटी, दैट वॉट एवर वाटर इज बीइंग सप्लाइड टू द हाउस होल्ड टैप्स इट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी. Okay, it should be of the appropriate quality of. Okay, then here there are 2233 government owned water quality testing labs in states and UTs. ओके, तो ये नंबर ऑफ आपकी वाटर क्वालिटी टेस्टिंग लैब्स हैं जो अंडर गवर्नमेंट वर्क करती हैं डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटीज़ में. सो व्हाट इज़ 100-day कैंपेन. ओके, हियर वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ 100-day कैंपेन. तो ये जो 100-day कैंपेन है वो, अब देखिए क्वेश्चन क्या होगा कि 100-day जो कैंपेन है वो किस पर्टिकुलर मिशन के अंडर लॉन्च किया गया है. ओके, सो दिस कुड बी द क्वेश्चन. सो हियर द पॉइंट इज दैट, see here the very important point is that 100-day campaign. So it has been launched on 2nd October to make provisions for assured pipe water supply in schools, आंगनवाड़ी centers and आश्रम शालास. जो आश्रम शालास है वो है रेजिडेंशियल स्कूल्स इन ट्राइबल एरियाज. ओके, सो अब जो 100-day कैंपेन है उसमें आपका पोर्टेबल वाटर सप्लाई करा जाएगा. पोर्टेबल वाटर सप्लाई, ओके, इट वुड बी डन इन द स्कूल्स, इन द आंगनवाड़ी सेंटर्स एंड आश्रम शालास. So these are some of the points which are related to 100-day campaign. Now facts related to Jal Jeevan Mission. What are the facts we are studying about? What we are studying? We are studying about JJM.
Okay, we are studying JJM. So JJM here is that during the launch of this mission in August 2019, 3.23 crore households out of 18.93 crore rural households had tap water connections. ओके, सो यहाँ पे ये कुछ नंबर्स हैं जो कि बता रहे हैं कि कितना काम हुआ है जेजेएम में. रिमेनिंग 15.70 करोड़, that is 83% rural households were to be provided with tap water connections by 2024. तो इसका जो टारगेट ईयर है वो आपका है 2024. ओके, जेजेएम का जो टारगेट ईयर है दैट इज 2024. So 100% functional household tap connection in 2020. तो अभी जो इसमें से एक स्टेट है गोवा, जहाँ पे सी अब नाउ द क्वेश्चन कुड बी दैट इन विच स्टेट जेजेएम मिशन हैज़ बीन अचीव्ड, द टारगेट हैज़ बीन अचीव्ड. सो आंसर इज गोवा. Okay, 15th Mission Commission has identified water supply and sanitation as priority areas for rural local bodies, and accordingly rupees 30,375 crore TIDE grant has been allocated. Okay, so these are some of the figures जिससे हमें ये पता चल रहा है कि जो JJM मिशन है वो किस प्रोग्रेस पे है. नाउ here we are studying about Center to Set Up Strategic Policy and Facilitation Bureau, SBFB की बात हो रही है. So what is SPFB? Now here about Strategic Policy and Facilitation Bureau, SPFB, it is a strategy policy unit of Ministry of Ayush. ठीक है, अब यहाँ पे आयुष का क्या मतलब है आपको वो समझना है. व्हाट इज आयुष? आयुष का यहाँ पे आपका मतलब हो गया आयुर्वेदा. ओके, ए मीन्स आयुर्वेदा, वाई मीन्स यूनानी एंड नेचुरोपैथी. ओके, यूनानी एंड नेचुरोपैथी. ओके, व्हाट इज दिस? एस इज एंड एच. ओके, ये आपका होम्योपैथी हो गया. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स रिगार्डिंग आयुष. ओके, एंड मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्ट इंडिया. ओके, जो आपकी इन्वेस्ट इंडिया के बारे में हमें पढ़ना है कि ये इन्वेस्ट इंडिया क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है. जो ये SBFB लॉन्च हुआ है टू फैसिलिटेट प्लान्ड एंड सिस्टमेटिक ग्रोथ ऑफ आयुष सेक्टर. ओके, सो द पॉइंट हियर इज that this will facilitate the planned and systematic growth of आयुष sector. तो यहाँ पे जो SBFB है, अब the question could be that what has been set up for the growth of आयुष sector recently. So the answer is SPFB. अब देखिए SPFB है, अब उसमें पूछा जा सकता है कि ये आयुष सेक्टर के ग्रोथ के लिए लाए गए हैं या किसी एक पर्टिकुलर किसी और भी सेक्टर का नाम दे सकते हैं. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए लाए हैं, सर्विस सेक्टर के लिए लाए हैं, इट कुड बी एनीथिंग. ओके, सो इट इज़ दैट ओनली. देन द ब्यूरो, व्हाट विल दिस ब्यूरो डू? इट विल सपोर्ट द मिनिस्ट्री इन स्ट्रैटेजिक एंड पॉलिसी मेकिंग इनिशिएटिव्स दैट शैल हेल्प पेव द वे टू रीच द फुल पोटेंशियल. अब जो आपका आयुष सेक्टर है उसकी ग्रोथ के लिए है, तो ये जो ब्यूरो है इट विल लुक आफ्टर वेदर द सेक्टर इज एबल टू अचीव इट्स फुल पोटेंशियल एंड इट विल स्टिमुलेट ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट इन द पर्टिकुलर सेक्टर. ओके, सो द एक्टिविटीज़ विच आर टू बी अंडरटेकन बाय SPFB वुड बी जो आपका नॉलेज क्रिएशन और मैनेजमेंट होगा. ओके, आपका स्ट्रैटेजिक पॉलिसी मेकिंग सपोर्ट होगा. देन स्टेट पॉलिसी बेंचमार्किंग होगा, इन्वेस्टमेंट फेलिसिटेशन होगा एंड इशू रिजोल्यूशन होगा. सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स विच वुड बी अंडरटेकन बाय SBFB. दिस पॉइंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. ओके, as far as you know that what is SPFB and for what it has been set up. अब इन्वेस्ट इंडिया हमने एक टर्म पढ़ा था. इन्वेस्ट इंडिया इट इज़ सेट अप इन 2009, इज़ अ नॉन प्रॉफिट वेंचर अंडर द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. ओके, जो आपका इन्वेस्ट इंडिया है वो एक नॉन प्रॉफिट फर्म है दैट वर्क्स अंडर द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो आपका DPIIT होता है. फाइन, जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ
ये इसको DPIIT बोलते हैं. Okay, so Department for Promotion of Industry and Internal Trade. It is India's national investment promotion and facilitation agency. So this Invest India is something in which the investments are made, okay, and it is a national venture. Okay, it works at the national level, where the investment promotion and facilitation agency, it is named as this National Investment Promotion and Facilitation Agency. Now we'll studying about a Vaibhav Summit, a unique confluence of resident and overseas Indian scientists. तो आपका वैभव जो है उसका फुल फॉर्म है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक. ओके, ये क्या है? ये ग्लोबल वर्चुअल समिट हुआ है ऑफ ओवरसीज एंड रेजिडेंट इंडियन रिसर्चर्स, जो आपके इंडिया के बाहर लोग रहते हैं बट दे आर इंडियन एंड दे ऑल्सो डू सम रिसर्च वर्क एंड दे आर गुड एट academics. Okay, they are doing some research work and they are academicians. So this summit was held for them only. So it is a joint effort of various science and technology and academic organization. तो ये जो है ये कंडक्ट कराया जाता है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा. ट्रेसेस ऑफ डेयरी प्रोडक्शन फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन. ये मज़ा आ गया, ये कुछ अजीब सा चीज़ हुआ है. अब हमको बहुत पुराना जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें हमको कुछ ट्रेसेस मिले हैं डेयरी प्रोडक्शन के. ठीक है, आपके जो जो दूध दही की चीज़ें हैं वो उस टाइम पर भी बनाए जाते थे और उनको किस तरीके से यूज़ किया जाता था, कहाँ कहाँ उनको फीड किया जाता था, तो ये उसी के ट्रेसेस कुछ मिले हैं. लेट्स अंडरस्टैंड. Be recently it has been declared that a study by Indian and Canadian archaeologists has found that dairy products were being produced by Harappans as far back as 2500 BC. ओके, तो आपको 2500 साल पहले जो हराप्पन्स है उन्होंने उनके जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसमें वो रहा करते थे, ओके, उनके एरा को जो हराप्पन एरा जो जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं जो उन्होंने इस्टेब्लिश की थी, तो उसमें ये पाया गया है दैट डेयरी प्रोडक्ट्स वर यूज्ड इवन एट दैट टाइम. ओके, सो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है हमें सबसे पहले वो समझना है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज हराप्पन सिविलाइजेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था दैट इट इज़ द हराप्पन एरा. Okay, it marks the beginning of Indian history. So what is important about Indus Valley civilization? See, there are various other civilization but we do not pay attention to them because they were not the beginning of Indian history. Okay, जो पहली चीज़ होती है हम ज़्यादातर उसी को याद रखते हैं एंड इट्स अ फैक्ट. आपको पता है कि जो पहला इंसान है चांद पे गया था वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, बट नॉट मैनी पीपल रिमेंबर दैट हु वॉज द सेकेंड पर्सन. Okay, so it is like that only. You know that the first woman who went to this space, it was Kalpana Chawla, but you do not know that who was the second one. So that is the difference here, that it was the beginning of Indian history. ओके, सो हरापन सिविलाइजेशन आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है. ये 2500 जो आपको 2500 BCE में एग्जिस्ट करता था, ये इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ एशिया. अब आपका जो साउथ एशिया है, ठीक है, साउथ एशिया मतलब क्या, जो इंडिया है और उसके ऊपर जो कंट्रीज़ हैं हम उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे साउथ एशिया. ओके, इंडिया हो गया, पाकिस्तान, ईरान, तो ये कुछ ऐसे साइड हो गए हैं जहाँ पे कि आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था. तो ये इन कॉन्टेम्प्रेरी पाकिस्तान एंड वेस्टर्न इंडिया. ओके, तो इसमें लिखा है ना कि पाकिस्तान और वेस्टर्न इंडिया जो है यहाँ पर IVC एग्जिस्ट करते थे. इन 1920s द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया कैरीड आउट एक्सकेवेशन इन इंडस वैली वेयर इन द ruins ऑफ द टू ओल्ड सिटीज़ विज मोहनजोदारो. आपने काफ़ी नाम सुना होगा, एक मूवी भी आई थी मोहनजोदारो, एंड हराप्पा वर अनऑर्डर. ठीक है, तो आपका 1920s में ये जो सारे काम हैं, जितने भी सिविलाइजेशंस है, ठीक है, जो पुरानी चीज़ें जितने भी सर्च किए जाते हैं ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है हमारी इंडिया में. ओके, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ASI वही करता है. तो उसी ने 1920s में एक्सकेवेशन स्टार्ट किया था, खोदना स्टार्ट किया था. टू ओल्ड सिटीज़ वर फाउंड एट दैट टाइम, मोहनजोदारो एंड हराप्पा. ओके, इन 1924 जॉन मार्शल, डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI,
announced the discovery of new civilization in the Indus Valley to the world. ओके तो 1924 में जो डायरेक्टर जनरल थे ASI के, उन्होंने ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसको फाइनली ऑफिशियली बताया दैट इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड, इट इज़ द न्यू सिविलाइजेशन. ओके सो ये उस टाइम की बात है जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था. ओके सो इट्स अबाउट दैट. नाउ क्या फाइंड किया है उस जगह पे, कैसे फाइंड किया है डेयरी प्रोडक्शन के बारे में. सो द रिजल्ट्स आर बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर केमिकल एनालिसिस ऑफ रेसिड्यू ऑफ पॉटरी. ओके तो जो पॉटरी थी जिसमें आपके बर्तन में जिसमें खाना पकाया जाता था या दूध दही चावल जो भी चीज़ें स्टोर करके रखी जाती थी, जो कि कोटादा भादली जो गुजरात में है वहाँ पे फाइंड किए गए हैं. तो उसके अंदर जो ट्रेसेस थे उसका मॉलिक्यूलर केमिकल एनालिसिस किया गया. ओके वॉट एवर थिंग्स वर फाउंड उनका मॉलिक्यूलर केमिकल एनालिसिस किया गया एंड later on it was found that these are some of the dairy products. Okay so the researchers were able to identify that kettles were used for dairy through a process called stable isotope analysis. ओके तो अभी रिसेंटली जो है उसमें ये भी फाइंड किया गया है कि जो कैटल्स हैं आपके, ठीक है, उनको भी जो ये बड़े बड़े बर्तन हैं उनमें फाइंड किया गया है, उनके भी ट्रेसेस फाइंड किए गए. नाउ द इम्पॉर्टेंट द वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट हियर इज़ दैट क्या वो केटल्स खाते थे, क्या हम ये इन्फर कर सकते हैं ये जो रिविलेशंस हुए इनकी वजह से. द आंसर इज़ नो. हमें नहीं पता कि वो केटल किसके लिए यूज़ किए जाते थे. खाने के लिए यूज़ किए जाते थे. ओके क्या उनका मीट खाया जाता था या फिर सेक्रीफाइसेस के लिए यूज़ किए जाते थे. ओके क्योंकि you know earlier in those times there used to be so many sacrifices which were offered to God. तो हो सकता है सेक्रीफाइसेस, तो हम डायरेक्ट कुछ भी इन्फरेंस नहीं निकाल सकते हैं. सो इट्स लाइक दैट. ओके द रिसर्चर्स वर एबल टू आइडेंटिफाई द कैटल्स. अब ये इन्होंने जो प्रोसेस यूज़ की है उसको स्टेबल आइसोटॉप एनालिसिस बोलते हैं. ओके सो जिससे कि ये पता चलता है कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स है वो सारे कैटल्स के थ्रू ही सारे बनाए गए थे. ओके सो दैट इज़ कॉल्ड आइसोटॉप एनालिसिस. नाउ रिलीजन इन न्यूज़. जो आपका सारना रिलीजन है जो कि झारखंड में इस रिलीजन के लोग पाए जाते हैं, तो अभी न्यूज़ में ये आया है दैट झारखंड गवर्नमेंट हैज़ पास्ड अ रेजोल्यूशन टू सेंड द सेंटर अ लेटर टू रिकॉग्नाइज सारना रिलीजन. ठीक है आपकी झारखंड गवर्नमेंट ने सेंटर को ये लेटर भेज दिया है कि जो सारना रिलीजन है it should be included as separate code in the census of 2020-21. ठीक है अब आपको पता है कि 2020-21 में आपका सारना रिलीजन जो है झारखंड गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप उसको एज सेपरेट कोड इंक्लूड करें. So the Sarna religion, what is Sarna religion? Okay, the followers of Sarna faith believe in praying to nature. Okay, these are the people who believe in praying to nature. The motto of the faith is जल जंगल जमीन. ठीक है तो इनका जल जंगल और ज़मीन है क्योंकि they pray to the nature. Its followers pray to the trees and hills while believing in protecting the forest areas. Okay so like 50 lakh tribals in the entire country put their religion as Sarna in 2011 census, although it was not a code. ओके तो जो आपका 2011 में सेंसस हुआ था, आपको पता है सेंसस हर एक डिकेड के बाद कंडक्ट कराया जाता है. सो इससे पहले 2011 में हुआ था. तो उस टाइम पे करीबन 50 लाख लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन अंडर सारना रिलीजन करवाया गया था, ऑल्दो इट वाज नॉट अ कोड एट दैट टाइम. ओके कोड यहाँ पे ये मतलब है कि जैसे कि जो भी जो भी आपका दिस सेंसस होता है, तो सेंसस में ऐसा किया जाता है कि इस रिलीजन के लोग इतने हैं, मुस्लिम्स इतने हैं, ओके जूज आर दिस मच एंड ऐसे जितने भी फारसीज है वो इतने. तो सेपरेट रिलीजन के लोग काउंट किए जाते हैं, तभी तो हमें पता चलता है कि किस कंट्री में क्या पॉपुलेशन परसेंटेज है जो डिफरेंट रिलीजन्स है उनका. ओके तो ये उसी में ये बात बता रहे हैं दैट कोड उसी को बोलते हैं.
Jharkhand has 32 tribal groups, of which 8 are from particularly vulnerable tribal groups. अब जो आपके PVTG हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली वनरेबल ग्रुप्स, सी जो झारखंड गवर्नमेंट है उसने लेटर में जो इंक्लूजन करने के लिए बोला है एज कोड. सो द पॉइंट हियर इज़ दैट जो आपके PVTG ग्रुप्स हैं इनको क्या ज़रूरत थी आइडेंटिफाई करने की गवर्नमेंट को. क्यों आइडेंटिफाई किया जाता है जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनको अलग से, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि कहीं वो वैनिश तो नहीं हो रही है वो पर्टिकुलर कम्युनिटी. ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ है जो वैनिश होती जा रही है. ट्राइबल एरियाज़ में काफ़ी सारी आपको ऐसी कम्युनिटीज़ पता चलेंगी जो अब वैनिश हो चुके हैं या वैनिश होती जा रही है. सो टू कीप अ चेक अपॉन देम, ये जो सेंसस है उसमें जो ट्राइबल ग्रुप्स है या अलग अलग जितने भी कोड्स होते हैं रिलीजन के, तो उनमें सबको सेपरेटली इंक्लूड किया जाता है. ओके, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पेरू. पेरू इट्स द फिफ्थ प्रेसिडेंट इन 5 years. ओके, मैनुअल मेरिनो, पेरू के जो अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट बने हैं मैनुअल मेरिनो, ही वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ पावर जस्ट 5 days आफ्टर टेकिंग ऑफिस. ठीक है, 5 दिन उनको करने दिया, जो करना है कर लो. 5 दिन के बाद उनको हटा दिया पावर से. ही वॉज टेकन आउट. सो क्यों किया गया ऐसा? काफ़ी मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे थे वहाँ पे. ओके, तो उनको इसलिए हटाया गया पावर से बिकॉज ही वॉज अलेज्ड ब्राइवरी चार्जेस. ओके, सो आपकी रिश्वत लेने के जो उनके ऊपर एलिगेशंस लगे थे तो उसकी वजह से उनको पावर से हटा दिया गया. नाउ पेरू, वील स्टडी अबाउट पेरू, दैट व्हाट इज़ दिस पेरू कंट्री. ओके, इट इज़ अ कंट्री इन वेस्टर्न साउथ अमेरिका. ठीक है, आपको पता है ये साउथ अमेरिका की एक कंट्री है. आपने पेरू का नाम सुना होगा क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं इक्वाडोर के साथ. ओके, सो इट इज़ बॉर्डर्ड इन द नॉर्थ बाय इक्वाडोर एंड कोलंबिया. ओके, ईस्ट में इसका ब्राज़ील है, तो इसके कुछ नहीं है नेबरिंग कंट्रीज़ है जैसे कि इक्वाडोर, जो आपका कोलंबिया है, ब्राज़ील है, बोलीविया है, चिली हो गया. ओके, एंड पैसिफिक ओशन तो है ही, आपको पता है अमेरिका के पास. ठीक है, ये तो इसकी ये जोग्राफिकल लोकेशन की बात कर रहे हैं. ओके, सो हियर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट जो आपका पेरू है, आपको पेरू में लगता है कि कुछ वो है, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद आ रही हो क्या? वहाँ पे ओल्ड या न्यू कोई भी वो है क्या? 7 wonders ऑफ द वर्ल्ड. सी देयर जो है वहाँ पे एक 7 wonders ऑफ द वर्ल्ड वो है. ओके, वन ऑफ देम. सो इक्वाडोर जो है आपका, वो भी आपको याद होगा कि गैलापागोस जो आइलैंड है काफ़ी ज़्यादा इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. गैलापागोस जो आइलैंड है इसका नाम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो ये पूछा जा सकता है कि इक्वाडोर में क्या है. और जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो आपका इक्वाडोर है, इक्वाडोर का जो नाम रखा गया है वो इसलिए उसकी जोग्राफिकल लोकेशन के ऊपर रखा गया है. ओके, इट इज़ लोकेटेड राइट एट दैट इक्वाटर. तो जो इक्वेटर है उसी के जस्ट उसी के ऊपर आपका इक्वाडोर है, तो उसकी जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से ही उसका नाम ये रखा गया है. ओके, पेरू इज़ अ मेगा डाइवर्स कंट्री विथ हैबिटेट्स रेंजिंग फ्रॉम पीक्स ऑफ एंडीज माउंटेन वर्टिकली एक्सटेंडिंग फ्रॉम द, जो आपका पेरू है वहाँ पे जो एंडीज माउंटेन्स है उनकी पीक्स है. ओके, और ट्रॉपिकल अमेजोन बेसिन रेन फॉरेस्ट है इन द ईस्ट विद द अमेजोन रिवर. तो अमेजोन रिवर के बारे में आपको पता ही है दैट इट इज़ द लॉन्गेस्ट वन. कैपिटल आपकी लीमा है. अब जो दिस पेरू, इट इज़ द कंट्री दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द पैसिफिक प्यूमास, a political and economic grouping of countries along Latin America's Pacific coast that share common trends of positive growth, stable macroeconomic foundation, improved governance, and an openness to global integration. तो जो आपका पेरू है, दिस फॉर्म्स द पार्ट ऑफ पैसिफिक प्यूमास. ये चीज़ आपको याद रखनी है. सो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ पेरू. हियर इट इज़. कैपिटल आपकी लीमा आप देख सकते हैं. ओके,
सो लीमा ये रही, और इसके बगल में आपका ब्राज़ील है। ओके, जहाँ पे बात की गई थी अमेज़ॉन की। ओके, अमेज़ॉन की बात करी गई थी यहाँ पे। फिर आपका इक्वाडोर है, यहाँ पे हमने बात करी थी गैलापागोस की, गैलापागोस। ओके, so these are some of the important things. Then let's move ahead. Discrepancies pointed out as Central Vista Redevelopment Project. ठीक है, हम discrepancies की बाद में बात करेंगे, but first of all you need to know that what is Central Vista Redevelopment Project. ठीक है, ये क्या चीज़ है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि रिसेंटली अभी इसका हमारे मोदी जी ने पूजन भी कर दिया है। ठीक है, काफ़ी लंबी स्पीच भी दी गई थी। किस दिन हुआ था वो, ये जो है, अब देखिए मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, अगर जिन लोगों को नहीं पता दैट व्हाट इज़ सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उनके लिए वैसे आई डोंट थिंक सो दैट एनीबडी ऑफ यू वुड नॉट बी नोइंग इट. Okay, because you all are preparing for the competitive examination where you need to know that what is going on in the country. Okay, so जो आपका CVRP है, ये जो है, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कि हम क्या करेंगे, राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक जितना भी एरिया है उसका रीडेवलपमेंट करेंगे, उसका रेनोवेशन करेंगे. ओके, तो क्या क्या प्लेसेस आ जाएंगे उसमें, क्या क्या जो प्रॉपर्टीज़ है वो आ जाएंगे. उसमें आ जाएंगे आपके देयर आर ग्रीन स्पेसेस, और जो आपके सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर्स है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पार्लियामेंट, द सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग एंड द नेशनल आर्काइव्स. तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका रीडेवलपमेंट या रेनोवेशन किया जा रहा है. तो ये जो है दिस इज बीइंग डन अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, सो अभी इसका रिसेंटली जो है इनॉग्रेशन भी किया गया है. तो इसमें आपको पता ही होगा कि जो आपका संसद भवन है वहाँ पे एक अटैक किया गया था 13 दिसंबर को. ओके, सो उसी दिन क्या हुआ है, मोदी जी ने आपका इनॉग्रेशन किया है टू एंश्योर सेफ्टी टू द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री. तो उसके लिए ये जो प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च किया गया. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं जो कि वेग हैं. ओके, जो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी चाहिए थी, द ट्रांसपेरेंसी हैज़ नॉट बीन मेंटेन्ड इन द प्रोसेस. ओके, सो दिस जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बोला है दैट देयर आर डिस्क्रिपेंसीज. नाउ लेट्स लर्न दैट व्हाट एक्चुअली आर द डिस्क्रिपेंसीज इन द project. So a common central secretariat will be constructed for all ministries that are currently spread over many buildings across Delhi. ओके, तो अभी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग की बात कर रहे हैं कि अब इसी में सारे ऑफिसेस बनाए जाएंगे जो पहले स्कैटर्ड थे, अलग अलग जगहों पे थे, वहाँ से सबको हटा के कलेक्ट करके कलेक्टिवली इसी बिल्डिंग में बना दिए जाएंगे. जो आपका नया पार्लियामेंट है, इट वुड बी रेडीड बाय March 2022. Okay, the revamped Central Vista, complete with public amenities and parking, has to be ready by November 2021, and the new Common Central Secretariat by March 2024. ठीक है, तो आपका ये प्रोजेक्ट है, ये बनना स्टार्ट हो गया है. इट हैज़ बीन लॉन्च्ड और इसका इनॉग्रेशन भी हो गया है. तो अब ये आपका 2024 तक, ठीक है, जो बिल्डिंग्स है तैयार हो जाएंगी सारी. द पार्लियामेंट हाउस एंड द नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स विल नॉट बी डिमोलिश्ड बट देयर यूसेज में चेंज. देखिए मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर बता दूँ. ये आपका इंडिया गेट हो गया, ठीक है, इंडिया गेट से आपका फिर यहाँ पे हो गया पार्लियामेंट. तो ये जो 3 किलोमीटर स्ट्रेच है आपका, 3 किलोमीटर स्ट्रेच है, द होल एरिया, ओके, द होल एरिया दिस वुड बी this is going to be redeveloped. ओके, तो इसी में आपके साउथ ब्लॉक्स और नॉर्थ ब्लॉक्स आते हैं, तो उनको डिमोलिश नहीं करेंगे बट देयर यूसेज में बी चेंज. तो रेस्ट ऑफ द बिल्डिंग दैट केम अप पोस्ट 1947 दे आर लाइकली टू बी डिमोलिश्ड. जो 1947 के बाद जो बिल्डिंग्स बनी हैं, शास्त्री भवन और कृषि भवन, उनको डिमोलिश कर दिया जाएगा. तो इसमें जो हमारे नेशनल सिम्बल्स हैं उनको यूज़ किया गया है. ओके, जो ये बिल्डिंग तैयार की जा रही है इसमें मैं आपको बता दूं कि जो हमारे नेशनल सिंबल्स है कुछ, उनको यूज़ करा है. हमारा जो लोटस है उसको यूज़ करा गया है इसमें.
ठीक है, बनाया जाएगा उसका बहुत बड़ा स्टैचू। और हमारा जो बरगद का पेड़ है, ओके, वो बनाया जाएगा। ओके, so some of these would be built. So lakhs of people benefit through tele-law. Now this is another article in which we are studying about tele-law. Tele-law was in news recently. ठीक है, tele-law क्या है वो अभी हम समझते हैं. Almost 4 lakh beneficiaries having received legal advice under this through CSCs, Common Service Centers. ओके, तो जो आपका CSCs है उसने ये बोला है that almost 4 lakh beneficiaries would be having legal advice. तो आपका जो टेली लॉ है वो क्या करेगा, लोगों को मदद करेगा लीगल एडवाइसेस देने में. अभी क्या होता है, लोगों को जाना पड़ता है वकील के यहाँ, चक्कर काटने पड़ते हैं कोर्ट के, ठीक है, जस्ट फॉर द लीगल एडवाइसेस. तो वो अब आपको कैसे प्रोवाइड की जाएंगी, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो दैट व्हाट इज टेली लॉ प्रोग्राम. Okay, it has been launched by Department of Justice in 2017 to address cases at pre-litigation stage. ओके, तो जो आपका प्री लिटिगेशन स्टेज है, आपका PLI फाइल हो उससे पहले ही आपको एडवाइसेस दी जाएंगी और आपके जो केसेस हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी. ओके, अंडर दिस प्रोग्राम. सो इफ़ इट इज़ नॉट दैट मच बिग देन इट वुड बी सॉल्व्ड. और अगर लगता है कि इसके बाद भी ज़रूरत है उसको लिटिगेशन स्टेज तक पहुंचाने की, देन इट वुड बी अलाउड टू to be registered. Under this program स्मार्ट टेक्नोलॉजी ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, अब टेली का मतलब ही हो गया कि आपको स्मार्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है. ठीक है, सो स्मार्ट टेक्नोलॉजी अब कौन कौन से तरीक़ों से इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, जो केसेस है उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, टेलीफोन या इंस्टेंट कॉलिंग फैसिलिटीज़ के थ्रू. ओके, तो जो आपके इसमें हेल्प करेंगे, अब टेलीफोन और इंस्टेंट कॉलिंग फैसिलिटीज़ कौन प्रोवाइड करेंगे, जो कॉमन सर्विस सेंटर्स है एट पंचायत लेवल वो प्रोवाइड करने वाले हैं. क्योंकि सी देयर आर कम्युनिटीज़ विच आर नॉट एबल टू एक्सेस दीज टेक्नोलॉजीज़. तो उनको मदद करने के लिए, उन तक ये टेक्नोलॉजी पहुंचाने के लिए, ये प्रोग्राम का रीच वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो CSCs हैं आपके कॉमन सर्विस सेंटर्स, उनको यूज़ किया जाएगा. With the panel lawyers for seeking timely and valuable legal advice. As I told you that this program is basically for providing legal advices to the people, to the vulnerable sections जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है to get the legal advices. Okay, it is proactively outreached to groups and communities through the cadre of frontline volunteers provided by NALSA and CSC e-government. ठीक है, तो जो आपका नालसा है जिसको हम नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बोलते हैं, तो ये जो है ये क्या करती है, ये फ्री लीगल एडवाइसेस प्रोवाइड करती है टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. ओके, एंड ऑल्सो जो आपने सुना होगा जो लोक अदालत्स होते हैं जहाँ पे सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, ओके, ये करवाया जाता है. आपने काफ़ी सुने होंगे कि जो संडे टू संडे आपके शहर में आप कभी देखिएगा लोक अदालत लगाई जाती है जिसमें जो डिस्प्यूट्स हैं उनको एमिकेबली सेटल किया जाता है. ओके, तो ये वही है जिसमें दिस नालसा, it is the authority which is responsible for it. So that's about it, I guess. Okay, so we have studied many articles in this slide. So I guess this was all about the articles of November month, and we'll be continuing with more of them in the next part of the video. I hope you all are liking the lecture and keep learning with us. Thank you.